Hello dear learners, welcome back. In the previous video, we had started with a chapter that is primary activities. So today, I'll cover the part 2 of the video. Now if you remember, we had covered the topics of hunting and gathering and pastoralism. Today in this video, we'll start with third type of primary activity, that is agriculture. Now, most of you had requested me to speak in Hindi as well. So I'll try my best. In fact, I'll do my best to explain in both the languages. Agriculture. Agriculture क्या होता है? अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊँ तुम लोगों को, एग्रीकल्चर का मतलब होता है फार्मिंग. या तो खुद के सर्वाइवल के लिए किया जाता है या कमर्शियल मार्केट में क्रॉप्स को सेल करने के लिए किया जाता है. Now under agriculture हमें पता है that different types of crops are grown, isn't it? And in different parts of the world people follow different types of agriculture. ज़रूरी नहीं है कि हम एक कंट्री में एक ही टाइप ऑफ एग्रीकल्चर करते हैं. अब ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्यों है? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, क्लाइमेट, सोशल कल्चरल फैक्टर्स एट्सेट्रा. ओके, सो now we'll see a classification of different agricultural systems of the world. मतलब different countries में जो different types of agriculture हो रहे उसका classification देखते हैं. So now agriculture are of various types. These includes your subsistence agriculture, your plantation agriculture, extensive commercial grain cultivation, mixed farming, dairy farming, okay, your Mediterranean agriculture, market gardening and horticulture, cooperative farming and collective farming. So ये different types of agricultural systems है. So हम start करेंगे सबसे पहला वाला जिसको बोलते हैं subsistence agriculture. अब subsistence means उतना ही produce किया जाता है जितनी की ज़रूरत है. So subsistence agriculture means an agriculture where the crops are grown either for your own consumption or for the local consuming areas. For example, एक farmer है, ठीक है, वो प्रोड्यूस कर रहा है अपने फैमिली के सर्वाइवल के लिए. वो उतना ही प्रोड्यूस करता है जितना उसको चाहिए, या जो लोकल आसपास के लोग हैं उसके लिए प्रोड्यूस करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग सब्सिस्टेंस. ठीक है, इसके प्रोडक्ट्स कमर्शियली लार्ज क्वांटिटी में सेल नहीं होते क्योंकि ये प्रोडक्शन ही लिमिटेड अमाउंट में होता है. अब सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं टू इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में. वो कैटेगरीज है, नंबर 1 प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, नंबर 2 इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. सो let us start with the first type of subsistence agriculture, that is your primitive subsistence agriculture. Okay, so let us start with the primitive subsistence agriculture. देखिए यहाँ पे word primitive का मतलब होता है using your old technology, okay, and only done for your subsistence. अब ये primitive subsistence agriculture practice किया जाता है mostly by tribes or people living in the tropical areas, जैसे कि अफ्रीका, ठीक है, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया. आप लोगों को मैं एक मैप दिखाती हूँ, ठीक है. क्या क्या बोला मैंने? साउथ एंड सेंट्रल अमेरिकन रीजन, अफ्रीका एंड योर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ठीक है, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. नाउ रिमेंबर स्टूडेंट्स, primitive subsistence agriculture is also known as your shifting cultivation. Okay, always remember that, do not forget it. It is also known as shifting cultivation because in examination they generally twist the question and sometimes they may ask you what is the other name of primitive subsistence agriculture. अब shifting cultivation के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा. इसको slashed and burn agriculture भी बोलते हैं. Okay, क्या होता है इज दैट इन योर शिफ्टिंग कल्टिवेशन एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर किया जाता है थ्रू स्लैश एंड बर्न मेथड. ओके, सो आफ्टर दिस लैंड इज क्लियर ऑफ ऑल इट्स बुशेज एंड वेजिटेशन, वहाँ पे कल्टिवेशन किया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 years ड्यूरेशन के लिए. सो आफ्टर 3 to 5 years में क्या होता है, जब उस लैंड का फर्टिलिटी डिक्लाइन या डिक्रीज होता है, तब
क्या होता है? The farmers they leave that patch of land and they move to another patch of land. Okay, in this way what happens, they keep on shifting from one land to another with the duration of 3 to 5 years because the soil is losing its fertility. ठीक है, इसी को हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं. अब एक मेजर प्रॉब्लम क्या है इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में? प्रॉब्लम ये है कि इज दैट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट स्लैश एंड बर्न एंड उसको कॉन्स्टेंटली क्रॉप्स उगाने की वजह से उसका फर्टिलिटी लो हो जाता है एंड देयर बाय लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम हो गया है इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द एरियाज वेयर शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड. Now, as I told you, shifting cultivation is practiced in your areas where there is tropical temperature. So now in this areas, ठीक है, shifting cultivation का local नाम है. different areas में इसको different नाम से पहचाना जाता है. जैसे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया को बोला जाता है जुमिंग. ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बोला जाता है जुमिंग. सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको में इसको बोला जाता है मिल्पा एंड इंडोनेशिया एंड मलेशिया में इसको बोला जाता है लदांग. ओके, सो you can also find out the names in the other parts of the areas as well. Okay, these are only the few names that has been given. So you understood what is primitive subsistence agriculture. Okay, and when I talk about the technology is primitive in nature. Okay, human labor लगा के इस एग्रीकल्चर को किया जाता है. Now let us see the second type of your subsistence agriculture जिसको बोला जाता है intensive subsistence agriculture. Okay, here see the word intensive has been stressed upon. Intensive means thorough utilization of the soil is done. Now, intensive subsistence agriculture is mostly practiced in the densely populated regions of monsoon Asia. Just see this part. Okay, this part is very famous for your intensive subsistence agriculture where most parts of your monsoon Asia comes under that. Now let us see the divisions or the two types of intensive subsistence agriculture. जैसे कि subsistence agriculture को divide किया गया था 2 categories में, similarly intensive subsistence agriculture को भी classify किया जाता है into 2 important categories. What are those? These are intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy and intensive subsistence agriculture dominated by crops other than paddy. So remember that one dominated by wet paddy, another dominated by crops other than paddy. So let us look into the characteristics. अब देखो, पहला जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन का मतलब होता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज डोमिनेटेड बाय राइस क्रॉप. मतलब इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में राइस उगाया जाता है. जो लैंड होल्डिंग्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत छोटे होते हैं क्योंकि ये कहाँ प्रैक्टिस किया जा रहा है? डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में. सो हमें लॉजिकली पता है कि डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में लैंड होल्डिंग स्मॉल होंगे, लेकिन उस लैंड होल्डिंग्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाता है क्योंकि जो फार्मर्स होते हैं वो इंटेंसिवली टूल्स एंड टेक्निक्स या मशीनरी लगा के, ठीक है, या ज़्यादा मैं बोलूँ ह्यूमन लेबर ज़्यादा लगा के उस लैंड को इंटेंसिवली यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र लगाना, मन्योर लगाना एट्सेट्रा. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द agriculture operations are done by manual labor, means through hand. यहाँ पे sophisticated and complicated technology use नहीं हो रहा है. ठीक है, और बाकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यहाँ पे फार्म मन्योर यूटिलाइज किया जाता है तो ताकि फर्टिलिटी मेंटेन हो सके. ओके, एंड द yield per unit area is high, means सपोज लेट्स टेक अ पार्सल ऑफ लैंड. ओके, लेट्स टेक अ पार्सल ऑफ लैंड. यहाँ से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको येल्ड बोलते हैं. वो बहुत ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि लैंड को इंटेंसिवली कल्टिवेट किया जा रहा है, लेकिन पर लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो. मतलब लेट्स से वन फार्मर, ओके, उसने यहाँ पे सब कुछ मैनुअल लेबर लगा के, सीड्स वगैरह लगा के इंटेंसिव राइस कल्टीवेशन किया है. ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्शन तो टन्स में हो रहे हैं इस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से, लेकिन जो पर लेबर जिसको जितना उसको मिलना चाहिए वहाँ से प्रॉफिट वो लो होता है इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में. ठीक है, सो याद रखना इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में राइस डोमिनेंट होता है, दैट इज paddy cultivation. Now let us see
जिस एरिया में, ना देखो एक और पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, इज दैट ये राइस कल्टिवेशन उसी एरिया में होगा जहाँ पे हैवी रेनफॉल है ना, सिंस यू नो दैट राइस रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टैग्नेंट वाटर, isn't it? So जिस एरिया में रेनफॉल इनफ नहीं होता है वहाँ पे दूसरा टाइप ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। मतलब पैडी के अलावा और जितने भी ड्राई क्रॉप्स होते हैं जिसमें इनफ वाटर नहीं चाहिए वो उगाया जाता है ना। वो क्रॉप्स क्या क्या है? वो है वीट, सोयाबीन, बार्ली एंड सोरगम। ठीक है, ये ड्राई क्रॉप्स है। नाउ ये कहाँ कहाँ practice किया जाता है? Now this type of intensive subsistence agriculture dominated by crops other than paddy is practiced in your northern China, Manchuria, North Korea and North Japan. It is also practiced in India, remember. Okay, if you look at the map. Okay, if you are able to say it, okay, it's practiced in those areas. Now, as I told you, it is also practiced in India. It is practiced in those areas where there is not enough amount of rainfall. जैसे कि हमारे वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया में या सम पार्ट्स ऑफ इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में ये अदर देन पैडी कल्टिवेशन किया जाता है। जैसे कि एज आई टोल्ड यू वीट है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वीट उगाया जाता है, सदर्न इंडिया में यू गेट मिलेट्स एट्सेट्रा। एंड रिमेंबर दैट दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रिक्वायर्स इरीगेशन फैसिलिटी। ठीक है, यहाँ पे इरीगेशन लगाना पड़ता है। ओके, यू रिक्वायर टू पुट इनटू इरीगेशन so that cultivation can be done. As I told you, it is practiced in those areas where there is no high amount of rainfall. So this was all about your subsistence agriculture, which we saw two types of primitive subsistence agriculture, दूसरा देखा हम लोगों ने intensive subsistence agriculture. Okay, now let us quickly move on to the other type of agriculture जिसको हम लोग बोलते हैं plantation agriculture. प्लांटेशन, ये जब वर्ड आपके माइंड में आता है तो यू मे बी थिंकिंग ऑफ अ लार्ज टी गार्डन डाउन देयर, isn't it? We will think of that. Now before that, let me tell you a small history about who started, okay, who brought about this plantation agriculture. Now plantation agriculture was introduced by the European people during the colonial period. मतलब जब European power like the French, the British, the Portuguese, the Dutch, they colonized, मतलब उन लोगों ने different parts of the country को जब capture किया था, अपना colony बनाया था, तब ये Europeans ने ही plantation agriculture start किया different parts of the country में. ठीक है, now there are different kinds of plantation crops. Plantation crops को हम लोग cash crops भी बोलते हैं, है ना, या तो हम लोग उसको कमर्शियल क्रॉप्स भी बोल सकते हैं क्योंकि इसका प्रोडक्शन हम लोग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंक्लूड्स टी, कॉफी, कोका, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, सुगर केन, बनानास एंड पाइनएप्पल्स. दे ब्रिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. That's why they are known as cash crops also, or in other words, plantation agriculture. Now let us dip into the characteristics of plantation agriculture. इसके characteristic क्या होते हैं? सबसे पहला characteristics most important जो हमें नहीं भूलना चाहिए वो होता है is that they require huge estates or plantations. If you have visited tea gardens or coffee plantation areas, you will see huge acres of land put under the cultivation of cash crops or plantation crops. Second important characteristic is that you require huge amount of capital investment. Now देखो, unlike subsistence agriculture जहाँ पे ज़्यादा capital investment नहीं है, in comparatively plantation agriculture को establish करने के लिए हमें huge capital investment चाहिए, चाहे वो infrastructure हो या चाहे वो investment in terms of money हो. ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है मैनेजरल एंड टेक्निकल सपोर्ट. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ टी गार्डन और अ टी प्लांटेशन. Now tea gardens doesn't only run with the tea pluckers, okay, it requires managerial staff. मतलब वहाँ पे फैक्ट्री होता है, वहाँ पे different levels of staffs होते हैं, machines होता है जो टी को प्रोसेस करता है, मैनेजर्स होते हैं, एट्सेट्रा होते हैं, है ना. इसीलिए प्लांटेशंस को एक प्रॉपर मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. देन द अदर
characteristic है scientific methods of cultivation. As I told you, they follow a scientific method of cultivation. When they are cultivating any kind of plantation crops, a lot of care has to be taken. बहुत ज़्यादा केयर लेना पड़ता है उनको प्रॉपरली सो करने में, उसको हार्वेस्ट करने में, मशीन्स लगाने में, एट्सेट्रा. ओके, देन सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन इज द अदर कैरेक्टरिस्टिक. नाउ याद रखना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में सिर्फ वन टाइप ऑफ क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है. जैसे कि टी स्टेट्स में सिर्फ टी दिखेगा तुम्हें, कॉफ़ी में सिर्फ कॉफ़ी दिखेगा. सो एक पर्टिकुलर एकर्स ऑफ लैंड को सिंगल क्रॉप के लिए डिवोट किया जाता है. देन cheap labor. It requires cheap labor. Okay, cheap labor means it's very easy to get labor to work for your plantations. If you have seen again in the tea gardens, have you seen workers working in daily wage condition? वो work कर रहे हैं, daily wage के basis पे वो काम करते हैं, tea pluck करते हैं. So labor क्या होता है? It's easy to get labor, especially in countries like your developing countries. It's easy to get labor and make them work under your plantation agriculture. Next, they also require a very good system of transportation. Now, plantations या gardens जितने भी estates होते, उसके पास प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए. क्योंकि वो फैक्ट्री को इंडस्ट्री से लिंक करेगा एंड देयर बाय वहाँ से प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं. जैसे दार्जिलिंग टी इज़ वेरी फेमस इन योर इंटरनेशनल मार्केट. Okay, similarly tea from Assam is sold in the international market. So फैक्ट्री से लेके स्टेट से लेके मार्केट तक एक बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन लिंक होना चाहिए ताकि पैकेजिंग एंड एक्सपोर्ट आसानी से किया जा सके. ठीक है, ओके. अब देखते हैं कि ये कौन से यूरोपियन पावर्स थे जिन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांटेशंस इंट्रोड्यूस किया है. द फर्स्ट टाइप ऑफ योर or the first people, not the first people exactly, the French people, they established coca and coffee plantations in West Africa. The Britishers, they brought tea gardens in India and Sri Lanka. Rubber plantations were established in Malaysia, and sugarcane and banana plantations in West Indies. Spanish and Americans invested heavily. Okay, they invested heavily in coconut and sugarcane plantations in the Philippines. The Dutch, they owned the monopoly over sugarcane plantations in Indonesia. Some coffee plantations in Brazil are still managed by Europeans. Okay, so these were the people who introduced the different types of plantations. Okay, if I repeat again, French ने क्या लाया? Coffee and coca in Western Africa. British, they brought up tea gardens in India and Sri Lanka. Rubber plantations लाया गया था in Malaysia, and sugarcane and banana plantations in West Indies. Okay, the Spanish and the Americans, they invested in coconut and sugarcane plantations in the Philippines. Now, see, इन द प्रीवियस और इन द एंशिएंट पास क्या होता था, ये जितने भी प्लांटेशंस है वो यूरोपियंस ओन करते थे. उनका ओनरशिप स्टिल यूरोपियन के पास. बहुत सारे ऐसे गार्डन्स है जिसका ओनरशिप स्टिल यूरोपियन होल्ड करते हैं. लेकिन आज क्या हो गया, द ओनरशिप हैज़ बीन शिफ्टेड टू द लोकल गवर्नमेंट. अब लोकल गवर्नमेंट इस प्लांटेशंस के मालिक होते हैं या कोई भी प्राइवेट कंपनी हो जो इसका ओनरशिप लेता है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अनदर, that's extensive commercial grain cultivation. ठीक है, एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? ऑन अ लार्ज स्केल. कमर्शियल का मतलब क्या होगा? कमर्शियल का मतलब होगा दैट द प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स या क्रॉप्स जो कल्टिवेट होता है वो कमर्शियली सेल होने के लिए कल्टिवेट किया जाता है. ग्रेन मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स जो उगाया जाता है. सो इन शॉर्ट इट इज एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन. चलो देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन का कि ये प्रैक्टिस किया जाता है सेमी एरिडिक लैंड्स. नाउ सेमी एरिडिक का मतलब क्या होता है? सेमी एरिडिक मीन्स semi-desertic conditions, very dry areas, semi-dry areas, okay, where the amount of rainfall is less and temperature high होता है in the middle latitude regions. So यहाँ practice किया जाता है. अब हमें लॉजिकली ये सोचना है कि जो सेमी एरिड एरियाज़ हैं वहाँ पे कौन से क्रॉप उगाए जा सकते हैं. सो बेसिकली वहाँ पे उगाए जाते हैं वीट. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप अंडर एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन है वीट है. उसके बाद बाकी है कॉर्न, बार्ली, ओट्स, राय एट्सेट्रा, ये भी उगाया जाता है. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन किया जाता है एन एक्सटेंसिव एकर्स ऑफ लैंड. द लैंड साइज इज़ वेरी ह्यूज.
ठीक है। और इस पर्टिकुलर लाइन साइज में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे कि प्लोइंग, हार्वेस्टिंग, मैनुअल लेबर से नहीं किया जाता है बट मेकनाइज्ड होता है, मीन्स यूज ऑफ मशीन्स एज यू एबल टू सी इन द डायग्राम। सो यू कैन सी दैट एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन किया जाता है हाई यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मशीन्स के थ्रू। एंड जो प्रोडक्शन होता है, वीट, सपोज वीट प्रोड्यूस किया जाता है, उसको कमर्शियली मार्केट में बेचा जाता है एंड प्रॉफिट भी हाई होता है। बट रिमेंबर, जो ये ह्यूज एकर्स ऑफ लैंड होता है, इससे जो प्रोडक्टिविटी होती है या इससे जो प्रोडक्शन इन टन्स होता है वो लो होता है, बट द yield पर पर्सन, लेट्स से वन फार्मर, ठीक है, yield पर पर्सन इज हाई। ओके, वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, एक्सटेंसिव कमर्शियल कल्टिवेशन या ग्रेन कल्टिवेशन करने के लिए यू नीड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अमाउंट ऑफ मनी हैज़ टू बी स्पेंट मोर, मशीन्स लगाने पड़ते हैं। इसीलिए क्या होता है, yield तो लो हो जाता है पर एकड़ पे, बट जो प्रॉफिट मिलता है वो फार्मर्स को हाई होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस सी ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन किस किस एरिया और किस किस पार्ट ऑफ द कंट्री में किया या प्रैक्टिस किया जाता है। सो ये एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन प्रैक्टिस किया जाता है योर यूरोपियन स्टेप रीजन्स, दिस वन, ओके, योर कैनेडियन prairies and American prairies region, Argentina, that's Pampas, South Africa, that's Wales, Australia, that's Downs, and Canterbury of New Zealand, ठीक है। Now ये important areas है जहाँ पे commercial grain cultivation चल रहा है। अब तुम्हारे एग्जामिनेशन में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाएंगे, they may ask you to identify where is Downs, where is Wales, where is Pampas, where is Prairies, where are European steppes, and etc. So you have to clearly look at the map and practice a lot. Okay, so ये था पूरा का पूरा extensive commercial grain cultivation के बारे में। चलो दूसरा टाइप ऑफ एग्रीकल्चर देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। अब मिक्स्ड का मतलब कल्टिवेशन के साथ साथ, क्रॉप्स के साथ साथ एनिमल रियरिंग पे भी एम्फेसिस दिया जाता है। नाउ दिस मिक्स्ड फार्मिंग, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन मोस्ट डेवलप्ड पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, parts of Eurasia, and the temperate latitudes of southern continents. So we can have a quick look at the map. Okay, whatever I talked about right now, this is the areas where your mixed farming is practiced. Now चलो देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ देखो, मिक्स्ड फार्मिंग में जो फार्म्स होते हैं, जो फार्म साइज होते हैं वो मॉडरेट होते हैं, वो ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, अनलाइक एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टिवेशन। Okay, and the crops which are grown in your mixed farming include wheat, barley, oats, rye, maize, fodder, and root crops. Now, fodder. What are fodder? Fodder crops are crops that are grown for the consumption of animals. मतलब animals के खाने वाले food को हम लोग fodder crops भी बोलते हैं, ठीक है। So I hope तुम लोग को समझ में आ गया होगा मिक्स फार्मिंग में कौन सा क्रॉप प्रैक्टिस किया जाता है। Now another important, very important in fact, the characteristic of mixed farming ये है that crop rotation and intercropping play an important role in maintaining soil fertility. मतलब मिक्स फार्मिंग में क्या किया जाता है इज दैट क्रॉप रोटेशन। मतलब सपोज you are growing one crop in a year, then the next year you will grow some other crop, so you keep on rotating the type of crops. Intercropping. Now intercropping means, suppose let's take this is one area where you have grown the crops, okay, and you grow other crop out here, you grow other crop out here. This is intercropping. राइट नाउ क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर सपोज तुम इमेजिन करो सिर्फ एक ही क्रॉप 5-6 साल तक वहाँ पे उगाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, उससे सॉइल फर्टिलिटी लो हो जाती है। बट इफ़ यू कीप ऑन रोटेटिंग द क्रॉप, सपोज आज मैंने कुछ सपोज लेट्स टेक वीट लगाया, नेक्स्ट टाइम मैं कोई लेग्यूमिनस क्रॉप लगा दूंगी ताकि उसका सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन रहे। ओके, सो इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही है मिक्स फार्मिंग का कि क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग से फर्टिलिटी मेंटेन किया जाता है। That's very important. Now,
As I told you, it's a mixed type of farming. Means you're growing crops and also keeping care of the animal. So cultivation के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री पे भी emphasis दिया जाता है. Important animals जो rear किया जाता है वो है cattle, sheep, pigs and poultry. ठीक है. नाउ ये एनिमल हस्बेंड्री एंड क्रॉप कल्टिवेशन से फार्मर्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है? डुअल बेनिफिट मिल रहा है. एक तो उसके क्रॉप्स भी ग्रो हो रहे हैं, ऑन द अदर साइड वो पोल्ट्री या शिप्स कैटल रख के अपना इनकम भी इंक्रीज कर सकता है. ओके, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करके, ओके, मीट सेल करके, मिल्क सेल करके, उसके विल सेल करके उसको डबल बेनिफिट मिल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग द इनकम अलॉन्ग विद द क्रॉप्स. Okay, now the other characteristic of mixed farming is that mixed farming is characterized by high capital expenditure on farm machinery and building extensive use of chemical fertilizers and green manures, and also by the skill and expertise of the farmers. मतलब mixed farming में हमें high capital investment करना पड़ता है, क्योंकि और क्यों करना पड़ता है? क्योंकि तुम्हें एक तो तुम एक साइड पे क्रॉप्स का केयर कर रहे हो, उसको हार्वेस्ट कर रहे हो, उसको प्लो कर रहे हो, है ना, एंड लेबर लगा रहे हो, मन्योर फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो. ऑन द अदर हैंड तुम्हें मशीनरीज भी चाहिए फार्म्स में, ताकि तुम अपने एनिमल हस्बेंड्री पे एम्फेसाइज कर सको. ओके, एंड डिफरेंट मशीन्स रखो. देन क्या होता है कि मिक्स फार्मिंग में हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूटिलाइज करने पड़ते हैं. सो इट्स दैट्स वाई इट्स वेरी एक्सटेंसिव यूज़ होता है यहाँ पे. मन्योर्स, इनफैक्ट ये नहीं कि सिर्फ केमिकल फर्टिलाइजर्स ही यूज़ किया जा सकता है, इवन ग्रीन मन्योर्स डाल के भी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करते हैं, सो करते हैं एंड ग्रो करते हैं. ठीक है. एंड जो फार्मर्स होते हैं वो अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज्ड एंड स्किल्ड होते हैं, ताकि वो दोनों टाइप ऑफ काम मैनेज कर सकते हैं. दैट इज़ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, और एक दूसरे हैंड पे एनिमल रेयरिंग भी आसानी से कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर्स इन मोस्ट ऑफ द developed parts of the world. So I repeat, mixed farming is mostly practiced in the developed parts of the world. क्यों? क्योंकि they can do capital investment. Okay, they have huge capital investment and they can utilize that particular amount of capital. Okay, so I hope you all have understood till now. अब दूसरे पार्ट ऑफ वीडियो में मैं दूसरे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर भी कवर करूँगी. आई एम गोइंग वेरी स्टेप वाइज सो दैट तुम लोगों को बोरिंग भी ना हो और ज़्यादा एक्सटेंसिव ना हो जाए. Okay, so keep connected. I will be uploading for the next part, that is part 3 of this chapter. Thank you for watching.